Hello children, welcome to class 1 computers. Children, this is your computer book IT Planet, my bits and bytes computer series 1. So children, in our previous video we were doing chapter 2. So children, chapter 2 we have completed and we were doing exercise of this chapter. So with this children we have completed the chapter and today we are going to start our next chapter, that is chapter 3. So children, as we usually do, we will revise the topic which we had covered in our previous video and then we will move further into the book. So children, in the previous video we had learnt chapter 2, that is parts of computer. So children, as we know, there are 4 main parts in a computer. As we know children, a computer has 4 main parts and these parts are very important. As we know children, these parts are keyboard, monitor, CPU and mouse. So children, without any of these parts, computer won't be able to perform even a single task. So computer works in a system children, and all these 4 parts which I have told you just now join together and form a computer system. So children, ये सारे parts एक साथ मिलकर के computer system बनाते हैं and computer works in a system. In a system means children, same as our body. Our body also works in a system. Our body cannot perform complete life processes without any of them. Same as our body has different parts and each and every part has their own function and they perform different tasks, and each and every part of the body is important to run our life cycle. So children, similarly, life processes we can say. So similarly children, in the computer also, the computer can perform any task only when all its 4 parts are joined together and they all function together. So children, in this chapter we studied about the 4 main parts of the computer and also we studied about the different purposes performed by the 4 main parts of computer, that is keyboard, mouse, CPU and monitor. So children, and I hope you all have understood the different work done by these parts and how important they are for the computer system. So children, in this way till now we have understood that the monitor looks like a television. So one of the part of the computer which is very important and which is used to display anything which we do on the computer. So the main work or the task of the purpose of the computer is to display whatever we do on the computer. Similarly children, it also looks like a television. और वो एकदम टीवी की तरह दिखाई देता है. So children, the main purpose of the monitor is to display whatever we do on the computer and it resembles TV screen, or we can say it looks like a TV screen. Then another part of the computer is children keyboard. Keyboard is a part of computer which has small buttons. These small buttons are called keys. And children, thirdly we have CPU children. CPU is another important part which is also known as brain of the computer and it controls all the other parts of the computer. So children, बाकी जो parts है computer के उन सबको CPU control करता है. Same as we have brain in our body and brain controls all the different parts of the body. Similarly, in the computer also CPU is known as the brain of the computer and it controls all the different parts of the computer. Then children, lastly we can say mouse. Mouse is another important part which is used to move, select or point something displayed on the screen. Any object which is displayed on the screen is moved, selected or pointed using the mouse. Children, mouse is also very important when you are doing paint or you are playing games. तो गेम्स खेलने के लिए या फिर ड्राइंग और कलरिंग करने के लिए we need a mouse and without a mouse we cannot do drawing or painting. So children, these were the points which we had studied and understood in our previous chapter. So children, I hope you all have understood the previous chapter. Now children, we are going to start our next chapter
So let's start, children. So children, here is chapter 3. You can see on your screen, this is chapter 3. Chapter 3, uses of computer. So children, till now we have understood what is computer, and we have also understood different parts of computer. Now we are going to read about uses of computer. So children, uses of computer का मतलब होता है कि वो सारे काम जो कि हम कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं. So children, as you know, nowadays कंप्यूटर हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आप सभी जानते हो जो कंप्यूटर है, सुबह से लेकर रात तक हम जितने भी काम करते हैं सब में किसी न किसी तरह से हम सबको के काम आता है. जैसे कि वेदर योर इन योर फैमिली यू हैव योर मदर, यू हैव योर फादर, योर सिबलिंग, और यू ऑल एवरीबडी यूज़ कंप्यूटर इन वन और द अदर फॉर्म. अब मैंने वन और द अदर फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर एक तरह का नहीं होता, कई तरह के होते हैं. जैसे कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है. अगर आप टैबलेट यूज़ करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटर. इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटर. एंड द डेस्कटॉप विच इज़ kept on the desk, that is also known as the computer. So children, these are the different forms of computer which we use in one or the other way. तो सुबह से लेकर रात तक हम किसी न किसी फॉर्म में इनमें से किसी न किसी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. और अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं तो वॉट एवर वी डू आउटसाइड आर होम चिल्ड्रन, वेर एवर वी गो वी फाइंड computer everywhere. So we can see computer everywhere. So children, whether it is mall, shops, railway station, airport, bus stand, or you can say children, even your school and your father's office, everywhere you can see computer. So we can say nowadays we cannot think of any place where we do not use computer, or we cannot think of any work where we don't use or need computer. So children, in this chapter we are going to cover the following topics. Let us see. So children, firstly we will be reading about drawing and coloring. The first use of computer is drawing and coloring. We can use computer to draw and color. Nowadays children, as we all are staying at home, हम सभी पूरे दिन घर ही पे रहते हैं, तो आपको लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिना पेपर वेस्ट किए, बिना कलर वेस्ट किए, और अगर आप ड्राइंग पेज पे करते हो तो आप एक बार गलत बना देते हो, अच्छी ड्राइंग नहीं बनाते हो तो पूरा पेपर वेस्ट हो जाता है. एंड यू गेट स्कोल्डिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स की पूरी ड्राइंग कॉपी फाड़ दी, पूरी ड्राइंग कॉपी भर दी. अब यहाँ कंप्यूटर पे इफ़ यू डू ड्राइंग एंड कलरिंग, आप आराम से पेज चेंज कर सकते हो, नया पेज ले सकते हो, आप एक ही चीज़ को 10 बार ड्रॉ कर सकते हो. आप कितनी भी गलतियाँ करो आप चेंज कर करके ड्रॉ कर सकते हो. तो वी विल बी रीडिंग अबाउट इट इन डिटेल. सो सेकेंड टॉपिक इज़ सॉल्विंग सम्स. आप सम सॉल्व कर सकते हो. अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन डू दिस. अगर या कोई डिफ़िकल्ट सम है तो यू कैन डू द सम यूजिंग द कंप्यूटर वेरी ईजीली. उसके बाद प्लेइंग गेम्स. आप गेम्स भी खेल सकते हो. आजकल आप घर से बाहर नहीं जाते हो, आप फिज़िकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, लेकिन आप घर में बैठ कर के कंप्यूटर से गेम खेल सकते हो. उसके बाद वॉचिंग मूवीज़. आप मूवीज़ देख सकते हो. यू कैन वॉच कार्टून्स, यू कैन प्ले म्यूज़िक, गाना सुन सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो. यू कैन टाइप, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. आप अपने रिलेटिव्स को, आप अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस सेंड भी कर सकते हो, एंड यू कैन रिसीव देयर मैसेजेस ऑल्सो. तो चिल्ड्रन, नाउअडेज as we are not able to go out of our house, this computer has made our life very easy and very this computer has proved itself very helpful. क्योंकि अगर हम बाज़ार नहीं जाते हैं तो हमें सामान मंगाना है तो हम कैसे मंगवाएंगे? तो हम कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर करके भी सामान मंगवा सकते हैं. तो इस तरह से हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में दिस कंप्यूटर इज़ यूजफुल. एंड लेट अस सी हाउ दीज हेल्प us in doing all the following works which are given under the topic to be covered. तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे किस तरह से कंप्यूटर हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं. सो चिल्ड्रन, वंस अगेन हियर वी मीट लैपी. हियर इज़ लैपी. सो चिल्ड्रन, hello kids, Lappy says, hello kids, hello kids, now I am
going to tell you how wonderful computers are. Wonderful means something which is very, very great. So computers are really very wonderful. And children, the computer does those things which we can't even imagine. हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी कोई मशीन होगी जो हमारे लिए इतना सारा काम करेगी और इतने अच्छे से काम करेगी. तो let us find out how computers are wonderful. So children, what makes a computer wonderful? कंप्यूटर जो है मतलब ऐसा कौन सा काम कंप्यूटर करता है जिससे इट बिकम्स अ वंडरफुल मशीन. सो लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द chapter. So here children, you can see in the next chapter, Lappy says there are many tasks that a computer does for us. So children, as I told you in the previous chapter also, that Lappy is the one, he is one of our friend who will be telling more about computers in every chapter. So children, in this chapter, Lappy is going to tell us about how these computers are wonderful or how these computers are useful for us. So this boy says, when the Lappy says, hello kids, now I am going to tell you how wonderful computers are. तो Lappy said कि मैं अब आपको बताऊंगा कि जो कंप्यूटर है कैसे वंडरफुल है. तो the boy says, what makes a computer wonderful? How this computer is wonderful? So children, there should be something which makes this computer wonderful. ये ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए, ऐसा कोई काम होना चाहिए जो कंप्यूटर करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर वंडरफुल बनते हैं. तो Lappy says, let's read how a computer is a wonderful machine. So children, here Lappy says there are many tasks that a computer does for you. So children, till now we have studied about many machines. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारी मशीनों के बारे में पढ़ा था. आपने भी मुझे बताया था आपके घर में कौन कौन सी मशीनें हैं. आपने बताया आपके घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है. देन चिल्ड्रन बहुत सारी ऐसी मशीन है, आयरन है, सो माइक्रोवेव है. तो देर आर लॉट ऑफ मशीन्स विच यू यूज़ इन योर लाइफ in daily. Means there are different types of machines which we all use in one or the other way in our day to day life. मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मशीन्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे काम को आसान बनाती है. सो चिल्ड्रन, जब मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजी एंड फास्ट, देन दैट टाइम आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, मशीन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है. तो यहाँ पे कंप्यूटर भी एक मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है. बट चिल्ड्रन, अगर हम फ्रिज की बात करें तो वो हमारे लिए हमारे सब्ज़ी और फलों को ठंडा रखता है और उसे ख़राब होने से बचाता है. ठंडा होने की वजह से हमारे फल और सब्ज़ी ख़राब नहीं होते हैं. जो हमारे घर में फल और सब्ज़ी होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते. अगर हमारे घर में कोई खाना बच जाता है तो वी कीप इट इन द फ्रिज एंड इट कैन बी केप्ट सेफली फॉर सम आवर्स, फ्यू आवर्स. और चिल्ड्रन, हम इफ़ यू फील थर्स्टी यू कैन हैव कोल्ड वाटर और कूल वाटर. एंड चिल्ड्रन, यू कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स ऑल्सो. तो बहुत सारे ऐसे काम हम फ्रिज से करते हैं. और उसके अलावा चिल्ड्रन, वी हैव कूलर. व्हेन यू फील हॉट you can use cooler, you get cool air from cooler और fan. या फिर आपके घर में AC है और भी अच्छी बात है, और भी आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है. तो इन दिस वे ऑल दीज मशीन्स मेक योर लाइफ कंफर्टेबल इन वन और द अदर वे. एक या दो काम करके ये आपकी लाइफ कंफर्टेबल बनाते हैं. लेकिन कंप्यूटर इज़ सच अ मशीन विच डज लॉट ऑफ टास्क फॉर अस. मतलब मेनी टास्क फॉर अस. वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. वो सिर्फ एक या दो काम नहीं करता, वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. और सो चिल्ड्रन, हियर द बॉय सेज व्हाट इज़ दिस टास्क. सो डू यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज़ दिस टास्क? द वर्ड टास्क, TASK, टास्क. क्या आपको पता है ये टास्क का मतलब क्या होता है? So here the boy says, Lappy says there are many tasks that a computer does for us. तो Lappy कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कंप्यूटर हमारे लिए करता है. So these two children says, what are those tasks? Means वो कौन से टास्क हैं. So children, what do you mean by task? Task means, अभी मैंने आपको बताया, the work done by the computer. कोई भी काम, किसी भी काम को हम टास्क कह सकते हैं. So किसी भी वर्क को हम टास्क कह सकते हैं.
सो हियर कंप्यूटर डज लॉट ऑफ टास्क फॉर अस। जो कंप्यूटर होता है हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, तो इसीलिए चिल्ड्रन हम कह सकते हैं। सो चिल्ड्रन दीज टू चिल्ड्रन सेज व्हाट आर दोज टास्क, तो वो कौन से काम हैं विच द कंप्यूटर डज। सो लेट अस सी व्हाट आर दीज टास्क चिल्ड्रन। TASK, टास्क, टास्क मीन्स वर्क। नाउ हियर Lappy says, oh friends let's have a look, तो Lappy says let's have a look. Now see here children, firstly as I told you, drawing and coloring. What do you mean by drawing and coloring? So children, till now you must be drawing, you must have made drawings many times and आपने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाई होंगी एंड कलर भी किया होगा. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ड्राइंग एंड कलरिंग. सो चिल्ड्रन, अभी तक आपने ड्राइंग और कलरिंग कैसे की? यू मस्ट हैव यूज्ड पेंसिल, इरेज़र, कलर, ब्रश और स्केच पेन और क्रेयॉन्स. ये सारी चीज़ों को यूज़ करके, ऑफ कोर्स पेपर, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके यू मस्ट बी डूइंग कलरिंग. अब जब हम अपनी ड्राइंग का कॉपी में कलर करते हैं तो योर टीचर सेज यू विल नॉट डू एनी मेक एनी ड्राइंग अनटिल और अनलेस आई आस्क यू टू डू. ठीक है, आपके ड्राइंग टीचर आपको कहती है जब मैं बोलूँगी तब आप ड्राइंग करोगे. उसके बाद जब हम फिर भी करते हैं तो वी गेट स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द टीचर से डांट सुनते हैं, मम्मा से डांट सुनते हैं कि आपका अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, आप पूरी ड्राइंग ड्रॉ कर करके फाड़ के ड्राइंग की कॉपी ख़त्म कर देते, फिर मम्मी को दोबारा ख़रीदनी पड़ती है, तो आप हमेशा डांट खाते रहते हो. बट चिल्ड्रन, कितना अच्छा है इफ़ यू कैन डू ड्राइंग विथ कंप्यूटर. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राइंग विथ कंप्यूटर. यहाँ पे हम किससे कंप्यूटर करेंगे, किस पर कंप्यूटर करेंगे? वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ पेपर, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ कलर. वी विल यूज़ पेपर, कलर, पेंसिल, एवरीथिंग वी विल यूज़, बट नॉट द वन विच वी वर यूजिंग टिल नाउ. जो हम अभी तक कलर, पेंसिल और चीज़ें यूज़ कर रहे थे, हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वी विल टेक ऑल दीज टूल्स फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डू द कलरिंग. सो चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर से लें के अंदर जो हमें कलर टूल मिल रहा है, टूल बॉक्स मिल रहा है, वहाँ से लेकर के फिर करेंगे. वहाँ पे हमारे पास कलर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है. और चिल्ड्रन, अभी तक आपने शायद पढ़ा नहीं है, वी विल बी रीडिंग अबाउट इट लेटर, कि वी कैन डू ड्राइंग एज वेल एज कलरिंग using the computer. Or when we do drawing and coloring with the computer या on the computer children, in the computer we don't need the pencil, eraser which we use to draw on color. तो वो सारे pencil, eraser, color, crayon, watercolor, whatever we use, वो सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती. All these are present in the computer itself. तो ये सब चीज़ें हमको कंप्यूटर में ही मिल जाती है, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम उनको. कितना भी ड्राइंग बना सकते हैं. अगर गलती हो गई तो हम पेपर चेंज कर सकते हैं. नोबडी इज़ गोइंग टू स्कोल्ड अस. हमको किसी से भी डांट नहीं पड़ेगी, ना टीचर से डांट पड़ेगी, ना इधर विल गेट स्कोल्डिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो चिल्ड्रन, है ना मज़ेदार बात? तो इसीलिए हम कंप्यूटर को वी कैन से इट इज़ अ वंडरफुल मशीन, क्योंकि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर दैट वी आर एबल टू ड्रॉ. हम अपना काम कर पा रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हमने गलत बना दिया, ऑफ कोर्स विल डिलीट दैट पेज एंड गेट अनदर पेज फॉर ड्राइंग. If you use these colors, you can use the colors in the which are available in the पेंट प्रोग्राम. तो हम पेंट प्रोग्राम से कलर करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, अबाउट विच विल बी रीडिंग इन डिटेल इन आर फर्दर चैप्टर्स. सो चिल्ड्रन, है ना मज़ेदार बात? इसीलिए हम कंप्यूटर को वंडरफुल मशीन कहते हैं, जो वंडर्स करता है, आश्चर्यजनक काम करता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए हम उसको वंडरफुल कहते हैं. वंडरफुल, जो आश्चर्यजनक काम करता है और जो हम चीज़ों को विश्वास नहीं हमको होता है या फिर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सारे काम करता है. तो है ना वंडरफुल बात कि हम ड्राइंग भी करेंगे, हम कलरिंग भी करेंगे, और वो सारी चीज़ें जिसके लिए हमको रोज़ डांट पड़ती है मम्मी से कि तुमने सारे कलर्स ख़राब कर दिए, तोड़ दिए, शार्प करके ख़त्म कर दिया, और यू हैव थ्रोन योर कलर्स हियर एंड देयर, यू हैव थ्रोन पेपर हियर एंड देयर, and you have wasted paper, you have torn your complete notebook, you have completed your drawing book. तो जिन चीज़ों के लिए हमें डांट पड़ती थी, वो सारी चीज़ें अब नहीं हमें सुननी पड़ेगी. तो है ना मज़ेदार बात, है ना वंडरफुल चीज़, दैट वी कैन यूज़ computers for drawing and coloring also. So computers can help you draw and paint. You can draw and paint anything very easily just by using the mouse. But children,
For as I told you, all the parts of a computer are very important. Here you must be thinking कि माउस के बिना तो हम काम कर ही सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन हम ड्राइंग और कलरिंग कीबोर्ड से नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स वी कैन टाइपिंग कर सकते हैं हम कीबोर्ड को यूज़ करके, या फिर हम कुछ भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डू ड्राइंग और कलरिंग यूजिंग द कीबोर्ड. सो हियर माउस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइंग एंड coloring. So children, first task which a computer does is drawing and coloring, and it is one of the tool which is used by you people only, and it is of you people, your interest. ये आप लोगों के interest की चीज़ है. It is very important for you all, and I know you all enjoy doing drawing and coloring on computer. So here are some words children. Drawing का मतलब आप सभी को मालूम है, DRAWING, drawing. Here you can see word DRAWING, drawing. Coloring, ड्रॉ जो हम करते हैं उसको कलर करने को हम कलरिंग बोलते हैं, COLOURING, कलरिंग. देन वी हैव ड्रॉ करना, ड्राइंग से बना, ड्रॉ से ड्राइंग बनता है. देन पेंट यानी कि कलर करना. सो जब हम पेंट करते हैं तो उसे जब हम कलर करते हैं तो उसे हम पेंट कहते हैं. देन चिल्ड्रन, हियर वी हैव एनीथिंग, कोई भी चीज़. एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़. देन वी हैव ईजी मीन्स आसानी से. सो चिल्ड्रन, अभी इट इज़ नॉट दैट ईजी टू एक्सप्लेन यू, बट यू शुड नो कि व्हेन वी डू ड्राइंग और कलरिंग इन द कंप्यूटर, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स एज वेल एज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स. हमारे पास अलग अलग टूल्स भी होते हैं. टूल्स का मतलब होता है कि उसमें शेप्स होते हैं. तो जो शेप हमको हैंड से पेंसिल लेकर के ड्रॉ करने में मुश्किल होती है, यहाँ पे हम माउस से आराम से उस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं. शेप को चूज़ करके हम डिफरेंट फिगर बना सकते हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स बना सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी ईजी. सो आपको कंपैरेटिवली पेज से ड्राइंग कंप्यूटर में बनाना आसान हो जाता है, इसलिए वो आपके लिए एंजॉइंग भी हो जाता है और मज़ा भी आता है. तो यू एंजॉय ऑल्सो. सो दिस इज़ ईजी मीन्स आसान. सो चिल्ड्रन, माउस का मतलब आप सभी को मालूम है. इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड coloring. So children, this is first task which is done by the computer, that is drawing and coloring. Then the second task children, another task which a computer does very easily is children solving sums. So children, solving sum हमारे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है. कभी कभी देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू डू. कभी कभी कुछ सम्स हम नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे वी कैन डू द सम्स यूजिंग द कंप्यूटर वेरी ईजिली. आप जो कीबोर्ड होता है उसमें नंबर्स होते हैं. वी ऑल नो देयर आर स्मॉल बटन्स इन द कीबोर्ड विच आर यूज्ड फॉर टाइपिंग और डूइंग कैलकुलेशंस. तो जो नंबर्स होते हैं 1 to 9 and 0, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जब हम कीबोर्ड के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, दैट टाइम वी स्टडीड दैट कि देयर आर 1 to 9 + 0 नंबर्स इन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में 1 से 9 तक और उसके बाद 0, 10 नंबर्स होते हैं. Using these numbers we can write any number, whether it is smallest number or the largest number. तो बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर हम लिख सकते हैं और उनको यूज़ करके we can do any type of calculations in the computer. So ये भी अच्छी बात है. It is another wonderful thing that कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आता, if you, जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, उसी तरह we have one we can do the same calculation which we do using the calculator on the computer also. So this is another task done by the computer. We can easily do any kind of sums, or we can solve any sum using the computer. So the computer solve sums for you. So this is another task done by the computer. You can do your sums very quickly and accurately. As I told you children, computer never makes mistake. ये एक अच्छी बात है कंप्यूटर के साथ बारे में कि वो कभी भी गलती नहीं करता. ये अपने काम को बहुत क्विकली करता है. इट डज़ एवरीथिंग वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेटली. फास्ट, क्विकली का मतलब होता है फास्ट, जल्दी. ये किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है. QUICKLY, क्विकली. QUICKLY, quickly, and accurately. ACCURATELY, accurately. The
computer does sums for us, we can solve sums for us and it does it very quickly and accurately. वह इसे बहुत जल्दी भी करता है और एकदम सही करता है. So we can rely on the computer for doing the sums. So this is second task done by the computer. Then children, next is playing games. This is another work which is of your interest. This is another task which is of your interest. So एक और काम जिसमें आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो and it is really a wonderful task for you people. So children, nowadays we are staying most of the time in our houses. We are not at all, most of the time क्या complete day और बिल्कुल पूरी तरह से हम घर पर हैं. We are not able to go outside for playing also. तो हम बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा सकते. तो nowadays these computers are very helpful in studies or playing games. हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं और हम गेम्स भी खेल सकते हैं. सो चिल्ड्रन, गेम्स खेल करके हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं. वी कैन पास आर टाइम, हमारा टाइम पास हो जाता है. एंड कंप्यूटर्स कैन प्ले गेम्स विथ यू. सो वी कैन प्ले games with computer. So children, what games you can play using the computer? You can play car race, or you can play cricket, you can play boxing, or many other games you can play here. So children, आप लूडो भी खेल सकते हो, कैरम भी खेल सकते हो. So यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं जो आप कंप्यूटर से खेल सकते हो. So you can play lot of games on a computer. You can play games with games like boxing, cricket or car racing and many other games. Other than these children, as I told you, you can play chess, you can play ludo, you can play snake and ladder. So there are different types of games available in the computer and you can play all these games easily using the computer. तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट का है और which will by playing those games we can entertain ourselves and also we can use our time, utilize our time in proper way. So गेम खेलने से भी ये नहीं कि हम दिन भर खेलते रहें, लेकिन हम थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा गेम्स कर सकते हैं. So here children, this is another task. So children, है ना ये wonderful machine? So of course now you can say computer is a wonderful machine, क्योंकि अभी तक हमने जिस भी मशीन के बारे में पढ़ा था it used to do one or द अदर टास्क, लेकिन कंप्यूटर देखो कितने सारे टास्क हमारे लिए करता है. दैट इज़ वाई लैपी सेज इट इज़ अ वंडरफुल मशीन. सो लेट अस सी व्हाट आर द अदर टास्क डन बाय द कंप्यूटर. सो हियर चिल्ड्रन, हमारा अगला टास्क है वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून. सो दिस इज़ ऑल्सो ऑफ योर इंटरेस्ट चिल्ड्रन. हम सभी बच्चे कार्टून देखना भी पसंद करते हैं और मूवीज़ देखना भी पसंद करते हैं. तो चिल्ड्रन, अगर आपको मूवी देखना है, और अब टीवी पे क्या है, टीवी पे हम अपने मन की तो मूवी या कार्टून्स नहीं देख सकते, जब जो आएगा वही देख सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर के थ्रू अपने मन का यानी अपनी चॉइस का, यू कैन से यू कैन वॉच मूवीज़ और कार्टून्स ऑफ योर ओन चॉइस. तो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि यूजिंग द कंप्यूटर यू कैन वॉच मूवीज़ और कार्टून्स ऑफ योर चॉइस. जब भी आप कोई भी मूवी देखना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर कार्टून देखना चाहते हो तो आप इजीली कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हो. तो दिस इज़ अनदर टास्क डन बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर्स कैन शो यू कार्टून्स एंड मूवीज़. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर दिस इज़ CD. ये DVD है. CD और DVD आपने देखा होगा, सर्कुलर डिस्क होता है ये, जो कि लैपी इज़ होल्डिंग. यूजिंग दिस DVD या फिर CD यू कैन वॉच मूवीज़ और कार्टून्स ऑफ योर ओन choice. अब चिल्ड्रन, यहाँ पे you can see you can also watch movies and cartoons on a computer. You can watch movies like Spider-Man, Donald Duck, etc. So here children, by using CDs or DVD you can watch movies or cartoons of your own choice. So children, with this we come to the end of this video. So let us revise what we have done till now. So in this video till now children, we have studied that we can that a computer is a wonderful machine. So the child says or the children says how a computer is a wonderful machine. So Lappy says a computer is a wonderful machine. Then these children says how a computer is wonderful machine. So once again Lappy says there are many tasks that a computer does for you. अब कंप्यूटर जो है हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, इसलिए कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है. तो बच्चे कहते हैं व्हाट इज़ दिस टास्क, मतलब व्हाट आर द टास्क विच
are done by the computer. So Lappy says, okay friends, let's have a look. So one by one it is telling about the different tasks which we can do using a computer. So firstly Lappy says drawing and coloring. The computer, we can do drawing and coloring using the computer. Then we can solve sums using a computer. Then we can play games using a computer. Then we can watch movies and cartoons using a computer. So children, with this we have come to the end of this video. Read the chapter, learn difficult words. We will meet once again in our next video. Till then children, thank you.